مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين واسع اعظم بمنے بے سروسا مدد قبلتی مدد کعبہ ما مدد بغیتا بے بلا افتاد نشتی ضعیف عالم شکستارات و کشتی باغ کے خواجہ عثمان آلو مدد کن مدد کن مدد کن یا معینتی چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے وسائل کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار سازدہ تو بندہ فخر رسولہ سیاح لا مکہ سرور نسوجا نین بدخا رازدار ماؤ کا جناب مدی مجتبہ سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا ہمیں اپنے غلامی کا ثبوت دے باوز بلند ہدیے درود شامل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، جناب یوسف صدیق علیہ نبینا علیہ السلام تفسیر سورہ یوسف جاری و ساری ہے، اور اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے بیان کیا تھا، آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا، اور زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی، مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی، وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جناب یوسف کو خریدنے کے لیے مصر میں پہنچی تھی، اور مصر کے بازار میں جب ان کی ایک نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یہاں تک میں نے واقعہ بتایا تھا، اور زلیخا کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا کہ بچپن میں کیا حالت ہوئی ان کی۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہلے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ان کو تو خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، اور مصر جب پہنچی تو یہ مل گیا عزیز مصر، یہ عزیز مصر مل گیا،
اب کیا کریں، زلیخا تو اپنی زندگی بتا رہی تھی، لیکن دیکھو اللہ رب العزت انتظام کیسے فرماتا ہے کہ زلیخا کے پاس، کیونکہ اس کی بیوی تھی، زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر جب بھی زلیخا کے پاس جاتا اور ارادہ کرتا قربت کا، قریب ہونے کا ارادہ کرتا، تو رب کی یہ مشیت تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ زلیخا کے پاس جب بھی عزیز مصر جاتا تو اس کی تمام مردات کی طاقت چھین لی جاتی، وہ نامرد ہو جاتا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے زلیخا کی حفاظت فرمائی اور ان کی عزت اور آبرو کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ تو اب زلیخا عزیز مصر کے ساتھ اپنی زندگی بتا رہی تھی، دن کر رہے تھے، لیکن اب انتظار تھا، وہ انتظار ختم ہوا کہ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام تو غلام کی شکل میں بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ اب زلیخا ہوش میں آتی ہے اور ہوش میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ اس غلام کو خریدنا ہے، ہمیں کسی بھی قیمت پہ اس غلام کو خریدنا ہے۔ جو کہ عزیز مصر کو تو ان کی بات ماننی تھی، کیوں؟ ان کی ایک جو بات تھی، ان کا جو راستہ ان کے اوپر پردہ ڈالا تھا زلیخا نے، ان کی عزت کی حفاظت کی تھی، وہ نامرد تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، وہ زلیخا نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اب یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ زلیخا کی ہر بات ماننا عزیز مصر کے اوپر ضروری تھا، ورنہ بادشاہ تھا، بادشاہ کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے، ویسے ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے پردہ ڈالا تھا، ہر بات مانا کرتا تھا، جو زلیخا کہتی وہ ساری چیزیں عزیز مصر مانتا۔ انہوں نے کہا کسی بھی قیمت پر ہمیں اس کو خریدنا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ ہے، انہوں نے مالک ابن زرار سے بات کی۔ اب یہاں پر وہ سمجھنے والی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب مالک ابن زرار، اب سارے وہاں پہ سودا لگا رہے تھے، بولیاں لگا رہے تھے، کوئی اتنے لاکھ اتنے کروڑ یہ وہ سب اپنے طریقے سے بولیاں لگا رہے تھے۔ بادشاہ آ گیا، اب کس کی ہمت ہے؟ بادشاہ آ گیا، اب کس کی ہمت ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگائے؟ یوسف علیہ السلام کی بولی لگائے تو اب سارے اپنی زبان میں کہیں کہ سارے ہی اپنے ہتھیار ڈال کے اب سائڈ میں ہو گئے۔ اب بادشاہ بات کرتا ہے، کہا تو قیمت بول، تو قیمت بول، کس قیمت پہ وہ جو ہے کہ اس عبرانی غلام کو تو مجھے بیچے گا، کس قیمت پہ بیچے گا؟ تو اب یوسف علیہ السلام کو تو ویسے ہی انہوں نے بنا سنگار کے اور جو ہے کہ تیار کروایا تھا، تو کہا کہ اس کے وزن کے مطابق ایک پلے میں ان کو رکھا جائے، دوسرے پلے میں ان کو رکھا جائے، ایک پلے میں ان کو رکھا جائے، دوسرے پلے میں سونا، اس کے وزن کے مطابق سونا چاہیے، کہ اس کے وزن کے مطابق چاندی، اس کے وزن کے مطابق عنبر، اس کے وزن کے مطابق زعفران، اس کے وزن کے مطابق مشک، اس کے وزن کے مطابق یاقوت، اس کے وزن کے مطابق جو ہے کہ موتیا، سچے موتیا، اس کے وزن کے مطابق درہم و دینار۔ اگر یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہے تو میں اس عبرانی غلام کو بیچنے کے لیے تیار ہوں، میں اس عبرانی غلام کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب تولا جاتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سے تولا جاتا ہے، بادشاہ کے خزانے سے مال لایا جاتا ہے۔ بادشاہ کا خزانہ کتنا بڑا ہوتا ہے وہ تو کسی سے پوچھے یا کوئی تاریخ آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، بڑے بڑے محل ہوتے تھے اور سونے چاندی کے انبار ان کے خزانے میں لگے رہتے تھے، کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا بادشاہ کا اتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے۔
बादशाह का इतना बड़ा खजाना होता है, क्योंकि अभी भी आप देखें गवर्नमेंट के पास कितना माल होता है, कितना माल होता है। वो खरबों रुपया अरबों रुपया जो है कि एक मामूली सा कोई भी नेता आता है तो उनकी जो है कि इस्तेमाल में, उनके स्वागत में वो खर्च कर देते। तो इनके पास कितना रुपया होगा, तो इन लोगों के पास इतना रुपया है तो वो तो उस वक्त के बादशाह थे, इनके पास कितना होगा, जरा सोचे आप, जरा सोचे। अब ये हुआ कि उन्होंने खजाना खुलवाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोलते जाते, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोलते जाते। अब ये तो ज़ाहिरी एतबार से जो अजीज मिस्र का बादशाह लोगों से यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 12 साल थी, तो ये 12 साल का इसका वजन क्या होगा और ये कितना माल लेगा मालिक इब्न ज़रार, तो इसका वजन भी क्या होगा। अल्लाह की मसीहत देके, अल्लाह की कुदरत देके वो माल डालता चला जाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन में और बरकत अता फरमाता, और बढ़ता चला जाता। क्यों, वो ये समझता था 12 साल का बच्चा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नबूवत का वजन दिखाया, का नबूवत का वजन ये है, तेरा खजाना कुछ नहीं है, अगर तेरे करोड़ों खजाने हो मेरे यूसुफ के वजन के बराबर हो ही नहीं सकते। अब वो जो है कि माल सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बराबर वजन में नहीं आ सका, इतना वजन। वो परेशान हो गया, अजीज मिस्र था, वो परेशान हो गया। कहा कि मालिक इब्न ज़रार एक काम कर, कहा बताइए। कहा कि मेरे एहसान बहुत है तुझ पर, एक काम कर यार कि तू मुझ पर ये एहसान कर कि ये जितना मेरे पास माल था वो सारा तो तुझे दे दिया, मैंने अपना सारा खजाना तेरे नाम किया और इसके एवज में ये नहीं करता हूँ कि गुलाम को दे दे, इस गुलाम की बराबरी कर ही नहीं सकता दुनिया का माल, ये सारा खजाना मैंने तुझे दिया और उसके बाद सारा खजाना तू ले ले और इस गुलाम को मुझे तोहफे में अता फरमा दे, इस गुलाम को तोहफे में दे दे, हदिया दे दे। मालिक इब्न ज़रार ने कहा कि ठीक है, वो बादशाह का खजाना मिल जाए तो कौन ना बोलेगा, समझ में आ रही है बात, बादशाह का खजाना मिल जाए कौन मना करेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया गया और मालिक इब्न ज़रार ने हदिया दे दिया, कहा ठीक है ले जाओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़लीखा के साथ और बादशाह के साथ जा रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर यहाँ पर देखो, अल्लाह ने फिर उनकी आंख से जो असल जलवा यूसुफ अलैहिस्सलाम का था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालिक इब्न ज़रार से छुपा रखा था। मालिक इब्न ज़रार की आंखों के ऊपर पर्दा था, उन्होंने असल जलवा नहीं देखा था। अब देखें यहाँ पे वो समझने वाली बात है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ चीजें, कुछ राज कुछ वक्तों से छुपा देता है कुछ वक्त के लिए कि उसमें उसकी भलाई होती है, उसमें उसका फायदा होता है। इंसान ये सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे अल्लाह के बंदे तेरे साथ इसलिए हो रहा है, अल्लाह चाहता है ये चीज जो तुझे अभी चाहिए वो तेरे हक में बेहतर नहीं है, बाद में जब तुझे अल्लाह देगा तो उससे भी अच्छी करके अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई चीज ना मिले तो ये तो यहाँ से बात मैंने सिर्फ ली है कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी कोई चीज देर से अता फरमाता है, कभी कभी कोई चीज हमसे छुपा देता है, उसमें उसकी हिकमत है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये मालिक इब्न ज़रार से के आंखों से पर्दा हटाया और जब उसने यूसुफ जब उसे दिखाया, जब उसने देखा मालिक इब्न ज़रार चीख पड़ा, कहा मैंने ये क्या कर दिया, इतने बड़े इतने हसीन और जमील और इतने खूबसूरत का सौदा मैंने बादशाह के साथ कर दिया, बादशाह को बेच दिया। अब ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब खरीदा गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मालिक इब्न ज़रार ने खरीदा था तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक वादा किया था। क्या वादा किया था? कि जब तू मुझे किसी के हाथों बेचेगा तो मैं असल कौन हूँ, मैं सारी राज की बात तुझे बताऊंगा, मैं सारी राज की बात तुझे बताऊंगा। अब
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के साथ जा रहे, बादशाह मालिक इब्न ज़रान कहता है का मुझे इस इब्रानी गुलाम से तन्हाई में 5 मिनट बात करने का मौका दो। कहा ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो साइड में ले जाता है, वो ले जाकर के कहता है कि ए इब्रानी गुलाम, तुमने मुझसे वादा किया था, रास्ते में मैंने तुम्हारी बहुत करामतें देखी, बहुत तुम्हारे एहसानात हैं, अब तुमने वादा किया था कि राज की बात बताऊंगा, वो राज की बात बताई, वो राज की बात कौन सी? कहा तू मुझे इब्रानी गुलाम कहता है, तो मुझे इब्रानी गुलाम को कहता है। कहा कि सुन, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानता है? कहा हाँ जानता हूँ, अल्लाह के नबी है। कहा कि इसहाक अलैहिस्सलाम को जानता है, उनके बेटे को? कहा उनको भी जानता हूँ। कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम को जानता है, वो उनके बेटे हैं, और उनका बेटा मैं यूसुफ हूँ, उनका बेटा मैं यूसुफ हूँ। मेरा बाप याकूब नबी, मेरा दादा जनाब इसहाक नबी, और मेरा परदादा जनाब इब्राहिम नबी। मैं नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी हूँ। मैं नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी हूँ। और फिर कहा कि वो जो 10 लोग थे जिन्होंने मुझे बेचा था, जानता है वो कौन है? जानता है वो कौन है? कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। कहा कि वो मेरे 10 भाई थे। कहा वो आपके भाई थे? वो आपके भाई थे, उन्होंने आपको बेचा क्यों? उन्होंने आपको बेचा क्यों? कहा छोड़, गिबत करना अल्लाह की बारगाह में पसंद नहीं है, गिबत करना अल्लाह की बारगाह में पसंद नहीं। जो मैंने तुझसे वादा किया था वो मैं तुझे बता दी, अब मैं अपने भाई की गिबत नहीं करूंगा। यहाँ पर एक बहुत समझने वाला नुक्ता बयान किया है बुजुर्गान दीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसी हालत में भी ये समझते अपने भाई की गिबत नहीं करनी चाहिए, अपने भाई की गिबत नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये हाल ये है, इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतना जुल्म किया कि जुल्म की कोई इंतहा नहीं, फिर भी अपने भाई की गिबत नहीं कर रहे। और यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर भी बाहर मस्जिद के ओटे पर, चकले में, बाजार में खड़े रह करके जिसने कुछ नहीं किया उसकी भी गिबत कर रहे। आज हमारा हाल ये। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हो, कोई भी नबी का वाकया हो, हमें इन वाकये से यही इबरत लेनी चाहिए। और गिबत का अंजाम क्या है? गिबत का अंजाम क्या है? का गिबत का अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह की बारगाह में वो शख्स इतना नापसंद है जो अपने भाई की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करता है, तो आज हमारा हाल ये हो गया है। फिर हम पर मुसीबतें और तकलीफें, परेशानियां इसलिए आती है कि हम अपने भाई की गिबत करते हैं, वो काम करते हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जो है कि बादशाह लेकर के जा रहा है। अब मालिक इब्न ज़रान की यहाँ पर बात खत्म होती है। अब अजीज मिस्र ज़लीखा और जनाब यूसुफ का वाकया यहाँ से आगे चलता है। दूसरे पढ़िए अल्लाह सैयदना शफीना अब जैसे ही बादशाह के महल में जनाब यूसुफ दाखिल हुए तो किसी ने अजीज मिस्र, जो मिस्र का बादशाह था, उनकी कान में आकर कि कहा के सारा खजाना तो इस गुलाम के ऊपर लौटा दिया है, कुछ बचा है कि नहीं? क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं तो तुम फौज को खाना क्या दोगे, फौज को जो है कि महीने का पगार कैसे दोगे, उनका खर्चा कैसे पूरा करोगे? फिर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। सल्तनत हुकूमत किस काम की जबकि कुछ माल ही नहीं है, जबकि कुछ माल नहीं है। बादशाह ने आपको लिखा ये गजब हो गया। उसने अपने खजानची को, खजाने का जो इंचार्ज था, उसको क्या कहते हैं, कैशियर क्या कहते हैं उसको, इंचार्ज जो था, उसको बुलाया। कहते खजाने में कुछ बचा है कि नहीं, खजाने में कुछ बचा है कि नहीं? अब वो खजाने की तरफ जाता है, खजाने को खोलता है, देख करके दौड़ करके बादशाह के पास आता है। कहा बादशाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जितना माल हमारे खजाने में था उससे कई गुना ज्यादा है तुम भी हमारे खजाने में मौजूद है।
जितना माल पहले था उससे कई गुना ज्यादा अपने खजाने में माल मौजूद है। ये कैसे हुआ? हमने तो अपने हाथों से सारा खजाना खाली किया, हमने अपने हाथों से सारा खजाना खाली किया, तो ये माल अब फिर कहां से आया? अब वो जो खजांची था उन्होंने कहा बादशाह तुम नहीं जानते हो ये सब इस इब्रानी गुलाम की बरकतें हैं, इब्रानी गुलाम की बरकतें। का कैसे? का तुम्हें पता नहीं है? तुम मालिक इब्ने ज़रान के साथ बातचीत में लगे हुए थे, मैं इस इब्रानी गुलाम के करीब में जो है कि खड़ा था, वहीं पे मैं मौजूद था और मैंने क्या देखा कि ये अपने अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है, ये अपने अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा एक सफेद परिंदा, सफेद परिंदा उनके पास आया, इंसानी ज़बान में बातचीत कर रहा था। कहा क्या बात है? कहा मैंने वो सारी बातें सुनी। कहा ये बात कर रहा था, कहा कि ए यूसुफ सोच तेरी शान कितनी बड़ी है, अगर तूने अपना सौदा लगाया तो खोटे सिक्कों में बेचा, अब अल्लाह ने जब तेरा सौदा किया बादशाह के खजाने खाली करवा दिए, फिर भी तेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये पहला मौजिज़ा, क्योंकि नबी से मौजिज़ा होता है, का ये इनकी करामत है, ये इनकी करामत है कि अल्लाह ने तुझे और बरकत दा। बादशाह को बड़ा मुतासिर हुआ जनाब यूसुफ से, हाँ यार ये तो बड़ी हस्ती है, ये तो बड़ी हस्ती है। अब उनकी जो सबसे चहीती बीवी ज़लीखा उनके हवाले किया, का सुनो इसको आम गुलामों की तरह नहीं रखा जाएगा, आम गुलामों की तरह नहीं रखा जाएगा, जो कमरा बादशाह का है उसी महल के अंदर, उसी कमरे के अंदर इनको भी रखा जाएगा, उसी कमरे के अंदर इसको रखा जाएगा। और ज़लीखा से वो बातचीत कर रहे हैं कि हमें औलाद नहीं है, हमें बेटा नहीं है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र चूंकि 12 साल की थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी खूब ध्यान रखो, खूब ख्याल रखो, उनको अच्छी तरीके से रखो, हम जो है कि उनको अपना बेटा बना करके अपने पास रख लेंगे। अब ज़लीखा तो यही चाहती थी, ज़लीखा यही चाहती थी, बरसों से जिनका इंतजार था अब यही चाहती थी, ज़लीखा का काम हो गया। अब ज़लीखा ने जनाब यूसुफ को अपने हवाले लिया, अब जनाब यूसुफ को महल में ले जाती है, महल में ले जाती है, और महल में ले जाने के बाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह का करम देखो। पहले क्या हुआ? पहले याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ थे, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। पहले याकूब अलैहिस्सलाम के पास, फिर वहां से कहाँ आए? कुएं में, कुएं से फिर आए सफर में, सफर में फिर आए मिस्र के बाजार में, मिस्र के बाजार से आए बादशाह के महल में, बादशाह के महल में। देखो कितना सफर है। अब इतनी तकलीफ के बाद बादशाह के महल में पहुंचे, अब अल्लाह का करम देखो, अब अल्लाह का करम देखो। ज़लीखा का तो काम हो गया, उन्होंने 365 अच्छे कीमती लिबास जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बनवाए। कितने? 365। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 300 जूते अलग अलग, 300 अमामा शरीफ, हर दिन नया जूता, नया कपड़ा, नया अमामा शरीफ, गोया कि हर दिन जनाब यूसुफ को कूड़े की शक्ल में हज़रत ज़लीखा तैयार करवा देंगे। अब ये अब अच्छे अच्छे खाने, सारे इंतजाम जनाब यूसुफ के लिए। कोई कहता कि ए ज़लीखा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस इब्रानी गुलाम का इतना ख्याल क्यों रख रही हो, इनके पीछे इतना पागल क्यों हो गई हो? अब ज़लीखा ने क्या कहा? ज़लीखा का तो बाना था, ज़लीखा को खबरदार तुम्हें पता नहीं है, बादशाह ने कहा है इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बादशाह ने कहा है इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं बादशाह का हुक्म कैसे करूं? मैं तो इसका खूब ध्यान रखूंगी, मैं तो इसका खूब ध्यान रखूंगी। अब चूंकि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़लीखा ने अपने शौहर जो अजीज मिस्र था उससे बात की, का सुनो एक काम करना है, एक काम करना है। क्या? का इनके लिए एक महल बनवाना है, एक महल बनवाना है। का ठीक है बना लो, ठीक है बना लो। बादशाह हर बात पूरी करता था, बादशाह हर बात पूरी करता था। ठीक है बनवा लो। उसने बड़े बड़े इंजीनियर मेहमान जो मिस्र के बड़े बड़े थे उनको बुलाया, कहा कि मुझे महल बनवाना है। कैसा महल बनवाना है?
का ऐसा महल बनवाना है, मैं नीचे रहूं, यूसुफ ऊपर रहे तो मुझे नीचे से भी दिखना चाहिए। का नीचे बैठे हो तो मुझे दाएं बाएं हर जगह जिस जगह पर मैं नजर डालूं मुझे यूसुफ ही यूसुफ नजर आने चाहिए। यूसुफ ही यूसुफ। एक मेहमान ने कहा कि तब तो तुम्हें शीशे का महल बनवाना पड़ेगा। शीशा कहते कांच को, कांच का महल बनवाना पड़ेगा। तो ठीक है बना लो, ठीक है बना लो। अब उन्होंने शीशे का महल बनवाया, शीशे का कांच का महल पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। देखो ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, आप बोल नहीं हो ना, ये कुरान है, ये कुरान है। अब कुरान बयान करने लगाओ। अब उन्होंने शीशे का महल बनवाया और शीशे का महल जब बनाया अब उन्होंने उनके अंदर सोने के पिलर बनवाए, सोने के पिलर बनवाए और उसके ऊपर चांदी के मोहर बनवाए। इस तरीके से अजीम और शान महल जनाब यूसुफ के लिए तैयार किया कि वो जिस महल के जिस कमरे में होती, जहां होती, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से वो देख सकती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से वो देख सकती थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत की कोई इंतहा न रही कि जुलेखा यूसुफ से इतनी मोहब्बत करती कि वो दरख्त को देखती तो उन्हें हजरत यूसुफ नजर आता। वो जहां देखती उसे यूसुफ के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब फिर एक मरतबा ऐसा हुआ क्योंकि जनाब यूसुफ को बहुत अरसा बादशाह के दरबार में महल में रह गए। अब देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तो करम ही करम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अच्छा खाना, नए कपड़े, रोज आलीशान सब कुछ हो रहा है। अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से लाइफ गुजर रही है। ये अपनी जुबान में कह रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लाइफ गुजर रही है। 17 साल की उम्र को पहुंचे, कितने 17 साल पे जब पहुंचे। अब जब 17 साल के पहुंचे तो एक मरतबा ऐसा हुआ ज़लीखा ने हजरत यूसुफ को एक कमरे में बुलाया। वो कमरा जो खास कमरा था अजीज़ मिस्र का एक कमरा, वो उस कमरे का वो कमरा इस तरीके से था, एक कमरा उसके अंदर दूसरा कमरा, उसके अंदर तीसरा कमरा, इस तरीके से 7 कमरे थे। उन्होंने जनाब यूसुफ को अंदर 7 कमरा, 7वें वाला जो रूम था, 7वां जो कमरा था उसके अंदर बुलाया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब सारे दरवाजे बंद कर दिए फिर ज़लीखा ने एक काम किया, ज़लीखा ने एक काम किया। अब वो काम कैसा था, अब यहाँ से ये वाकया एक नया मोड़ लाता है और नई वाकये की तरफ ये वाकया पूरा चला जाएगा। और ज़लीखा ने वो काम किया जो इंसान सोच नहीं सकता, मतलब कि अब शैतान ने उसको इतना बल बनाया। अब क्या हुआ इंशाअल्लाह ताला आएगा जवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अंबिया इकराम की सीरत के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरत को सुनने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।